Good morning, dear student. So, our topic portrait of a lady is going on. The portrait of a lady, it is written by Khushwant Singh. Khushwant Singh was born in Pakistan. That was the place at that time in Pakistan. But he arrived India in 1948. So here in this story, he has mentioned about his grandmother. His grandmother loved him very much, and he had also mentioned about the routine of his grandmother in the village. As usual, grandmother got up early in the morning and after getting bath, she used to busy in her prayer, and while praying she used to have a beads of rosary, and always she went on counting something and always went on muttering some prayers. Writer could not understand them and never he wanted to learn them. Later on, she offered her stale chapati with butter, and she also put some stale breads with her to offer the stray dogs of the village. Both of them both of them used to go to the school together. Grandmother used to sit in the temple, and she went on reading their scriptures, while Khushwant Singh used to study there. He was taught by the priest of the temple. Okay, so because of parents of Khushwant Singh had settled in the city for the survival. Now our story starts from here. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. They sent for us means they called for us. जब पेरेंट्स अच्छी तरीके से सिटी में सेटल्ड हो गए तो उन्होंने दादी माँ को और मुझे वहीं बुला लिया. दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और यही हमारी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था. गांव में हम दोनों साथ साथ थे, लेकिन शहर में आने के बाद कुछ बदलाव शुरू हो गए. ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी. फर्स्ट चेंज क्या था, वो दोनों एक कमरे में रहते थे, बट गांव में दादी माँ खुशवंत सिंह के साथ स्कूल जाती थी, लेकिन शहर में वो स्कूल नहीं जाती थी. फर्स्ट चेंज आ गया कि ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी. सेकेंड वन था, आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल इन ए मोटर बस. सेकेंडली क्या था कि मैं बस से एक मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ने जाता था. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स. तीसरा चेंज क्या था कि गांव में तो आवारा कुत्ते होते थे जिन्हें दादी माँ स्टाइल चपाती देती थी, लेकिन यहाँ गलियों में कुत्ते भी नहीं होते थे. एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कल्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस. इसलिए दादी माँ क्या करती थी कि हमारे जो शहर वाला मकान था उसके आंगन में वो स्पैरोज, गौरैया छोटी चिड़िया होती हैं, उनको दाना डाला करती थी. एज द ईयर्स रोल्ड बाय मीन्स पास्ड अवे, कई साल गुजर गए. वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, और हम एक दूसरे को बहुत कम देख पाते थे. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक अप मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. शुरू में वो मुझे उठाया भी करती थी और स्कूल के लिए रेडी भी करती थी. व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट. और जब मैं स्कूल से लौट कर आता था तो मुझसे पूछती थी वो शुरू में कि आज टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया है. I would tell her English words and little things of Western science and learning. So I always used to tell her that I have learned today some English words and little things of Western science.
द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा। अब वो साइंटिफिक चीज़ें थीं, ग्रेविटी वगैरह, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत, जो दादी माँ को नहीं पता थे। दिस मेड हर अनहैप्पी, इसलिए वो बहुत दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो शी वॉज अनेबल बिकॉज शी हैड नेवर स्टडीड दोज सब्जेक्ट, सो शी कुड नॉट हेल्प मी। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. Being an essential part of Indian culture, she believed that the knowledge of the scriptures must be given to the student in the school, and she always deserved that the teacher should taught the students about God, Lord Ram, Krishna, etc. वो ये मानती थी कि स्कूल में हमें धर्म के बारे में बताना चाहिए और जो हमारा ओल्ड एंशियंट गॉर्जियस जो हमारा साहित्य है उसको भी पढ़ाना चाहिए। One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed, and when that happened, I told my grandmother, Dadima, today our music teacher taught us a song and he also taught us how to dance. Grandmother became disturbed because she did not like such things. To her, music had lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. वास्तव में क्या था कि ये म्यूजिक जो था, म्यूजिक को मानती थी कि जो ल्यूड एसोसिएशंस हैं इससे बच्चों में एक गंदी याद डेवलप होती है, तो इट शुड बी कंट्रोल। शी वाज नॉट इन फेवर ऑफ कि म्यूजिक should not be taught to the student in school level. She considered that. So that's why when I told her that today I learned about the music, she became very distressed. बहुत दुखी हो गई वो, because she considered ये जो म्यूजिक है ये क्या होता है, ये थोड़ा सा ल्यूड एसोसिएशंस जो डांसर होते हैं, नाचने गाने वाले होते हैं, उनसे बिलोंग करता है। ल्यूड मीन्स होता है लो लेवल, डांसर्स वगैरह के लिए वर्ड यूज़ किया गया। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स। हार्लॉट्स वर्ड आया इसमें, ये वर्ड हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा जो है यूज़ करा जाने वाला वर्ड है। आपने अगर कभी वर्ड सुना होगा प्रोस्टिट्यूशन, वैश्या, सो दैट इज फॉर harlot. Okay, so she considered that the person who love music, they are considered for harlots and beggars. जो भिखारी लोग होते हैं वो, ये जो वैश्य लोग होती हैं वो, इनको केवल उनके लिए ये काम होता है इसको यूज़ करने का। अच्छे लोग, जेंटल फॉक जो होते हैं, दे डोंट use such things. She said nothing, but her silence meant disapproval. अब उसने कहा तो कुछ नहीं, but वो चुप हो गई. It means she was not agree. She rarely talked to me after that, and from that day she never liked to talk me about my study. She never asked me. So these were the changes. पहला चेंज क्या हुआ इसमें कि जो वो जानती थी वो नॉलेज यहाँ मॉन्टेसरी स्कूल में नहीं दी जाती थी। उसे इंग्लिश नहीं आती थी, उसको साइंस नहीं आती थी, तो इसलिए वो अनहैप्पी हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो अब अपने खुशवंत सिंह के साथ में इतना समय नहीं दे पाती थी, उसे जो सब्जेक्ट नॉलेज नहीं आती थी। वो सोचती थी कि स्कूल में गॉडेस और स्क्रिप्चर्स की जो है स्टडी करानी चाहिए, और म्यूजिक को तो बिल्कुल लाइक नहीं करती थी।
When I went up to university, I was given a room of my own. When I grew up and I joined the graduation, so I was given a separate room in my own house. The common link of friendship was snapped. Snapped means broken away. अब जो फ्रेंडशिप का एक कॉमन लिंक था वो भी टूट गया जब मेरा रूम वहाँ से सेपरेट हो गया. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, एकाकीपन, अकेलापन, विद रेजिग्नेशन. और वास्तव में जो दादी माँ थी, सी एक्सेप्टेड, बोले या अब यही होना था. दिस वाज द लास्ट होप दैट इट मस्ट बी डन. उसका रूम चेंज हो गया और रूम चेंज होने की वजह से अब उसके पास में दूसरा कोई भी ऐसा ऑप्शन ही नहीं था कि वो साथ में रह पाते. सो एज ए रिजल्ट क्या हुआ? शी एक्सेप्ट दैट थिंग दैट नाउ आई शुड लिव एज ए प्राइवेटली. तो उसने अपनी प्राइवेटनेस को कंसीडर कर लिया था. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. शहर में आने के बाद शी स्टार्टेड टू वर्क ऑन स्पिनिंग व्हील. चरखा होता है, चरखे पर काम करती थी और किसी से बात नहीं करती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. सूर्योदय से सूर्यास्त तक बस अपने चरखे को काटती थी और अपनी प्रेयर्स करती रही. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. So she could get only a little bit time in her spinning wheel, and then in that time she used to make a little bits parts of bread sitting in the veranda for feeding the sparrows. And the sparrows came there in hundreds of numbers, and they created a veritable bedlam of chirpings. बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे वो वहाँ पर बैठकर. तो गौरैया, छोटी छोटी चिड़िया आती थी, उनका जो टाइम होता था, दे केम देयर इन देयर पंक्चुअल टाइम, कि यस दैट वाज द टाइम फॉर द ग्रैंड मदर हु विल ऑफर देम सच थिंग टू ईट. सो दे ऑलवेज अराइव देयर इन देयर फिक्स टाइम एंड दे मेक ए ह्यू एंड क्राई. बैडलैम मीन्स होता है ह्यू एंड क्राई, बहुत ज़्यादा शोर मचाना. तो वहाँ पर बहुत चिरपिंग वो करती थी. बैडलैम, ह्यू एंड क्राई. सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स. तो कुछ चिड़िया आती थी, वो उसके पैर पर आकर पर्च्ड ऑन मीन्स लैंडेड, बैठ जाती थी. और कुछ उसके शोल्डर पर, कंधों पर जाकर बैठ जाती थी. सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ उसके सिर पर बैठ जाती थी. शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे. दादी माँ मुस्कुराती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उन पक्षियों को अपने से दूर जाने के लिए नहीं कहा. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. तो ये उसका सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट आवर होता था व्हेन शी यूज टू फीड द स्पैरोज. तो हियर इन दिस पैराग्राफ यू कैन कंसिडर अबाउट टू थिंग्स. जब राइटर ग्रो अप हुआ, मैच्योर्ड हो गया, यूनिवर्सिटी में जाने लगा, तो उसको सेपरेट रूम दे दिया और दादी माँ के साथ उसका फ्रेंडशिप थी वो एकदम ब्रेकअप हो गया. दादी माँ ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उसने अपने उस
आइसोलेशन क्वारंटाइन को एक्सेप्ट कर लिया। अब उसने क्या करा, शी मेड हर सेल्फ बिजी इन स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील के साथ उसने अपने आप को बिल्कुल बिजी कर लिया। पूरे दिन उसी में लगी रहती थी, केवल बीच में कुछ देर आधे घंटे को उठती थी, रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करती थी स्पैरोज को खिलाने के लिए, और स्पैरो जो आती थी वो उसके पूरी बॉडी पर चढ़कर बैठ जाती थी, लेकिन दादी माँ उनको कुछ नहीं कहती थी। इट वॉज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। When I decided to go abroad means out of India for further studies, तो जब मैंने बाहर जाकर पढ़ाई करने के लिए निश्चय किया, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age one could never tell. 5 साल के लिए मुझे बाहर जाना था और मैं जानता था कि मेरी दादी माँ बहुत दुखी होंगी। But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. दादी माँ शांत रहीं, स्टेशन पर भी आई, but she kept on silent. चुप रही बिल्कुल। She did not show any sentiments. She did not ask any question to the writer. Stand in only a silent mode. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently she kissed my forehead. अपनी प्रेयर कर रही थी। मैंने सभी के पैर छुए 1 by 1, और जब मैंने दादी माँ के पैरों को छुआ, कहा उसने कुछ नहीं, चुपचाप उसने मेरे माथे पर एक किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट कैरिज द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। अब मैं सोच रहा था मन ही मन कि शायद ये मेरी दादी माँ के साथ में एक लास्ट मीटिंग है, और इसीलिए मेरा मन थोड़ा सा उदास सा था। I was thinking about that it may be possible कि will I ever see her. So that's why I kept the dream in my eyes. Carried means to keep one thing in eyes. बस I carried the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. मेरी आंखों में जो आंसू से आए, मैंने उनको अपने पास संजो कर रख लिया कि शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। But that was not so. After 5 years I came back home and was met by her at the station. But it was not so. When I returned after 5 years, she was there on the station to welcome me. She did not look a day older, and she was same to same as I had left her before 5 years. She was still the same. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. In the same way, she had no time for talking. She went on reciting her prayers, and when I met her, she clasped me, she hugged me in her arms, and I could hear her reciting her prayers. I could not understand what she is reciting, but it was clear that she is reciting her prayers. Clasp means hugged. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. Rebuke means to scold, डांटना, and frivolous means with love, प्यार से, धीरे से। माँ जैसे डांटती है ना, माँ की डांटने में गुस्सा नहीं होता। इन द सेम वे दादी माँ उन पक्षियों को, उन स्पैरोज को ऐसे डांटती थी। When I returned from that day, and it was the first day of my arrival,
She went on busy longer. As usually, she spent half an hour with the sparrows, but on that day, she went on busy for more than half an hour. Even today, she was rebuking them, she was scolding them with love. पक्षियों को वो थोड़ा थोड़ा डांट भी रही थी. In the evening, a change came over her. और यहीं पर एक टर्निंग पॉइंट हुआ. इन द इवनिंग, शाम जब हुई तो एक थोड़ा सा उसमें मैंने चेंज नोटिस किया. और वो चेंज क्या था? व्हाट वाज द चेंज? एंड द चेंज वाज ओनली वन. शी डिड नॉट प्रे. उसने बिल्कुल प्रेयर नहीं की. फर्स्ट टाइम था उसकी लाइफ का. मैंने जब से नोटिस किया कि इट वाज फर्स्ट टाइम कि शी डिड नॉट प्रे फॉर गॉड. शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. अब उसने क्या करा? शी कॉल्ड द सम ऑफ द लेडीज ऑफ द नेबरहुड एंड अरेंज्ड एन ओल्ड ड्रम. ढोलक शी कलेक्टेड एंड स्टार्टेड टू सिंग. और उसने गाना, ढोलक बजाने शुरू कर दी, गीत गाने शुरू कर दी उन लेडीज़ के साथ. फॉर सेवरल आवर्स, मैनी आवर्स, शी थम्प्ड द sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. Sagging means loose, झोल, जो बोलते हैं हिंदी में झोल, लूज skins of the dilapidated drum. जो ड्रम था, पुराना ढोलक था, उसकी जो स्किन थी वो भी काफ़ी लूज हो गई थी, उसको थपथपा रही थी, गीत गा रही थी. एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. जब युद्ध से योद्धा वॉरियर्स वापस लौट कर आते थे तो उस समय जो सॉन्ग गाए जाते थे वो वेलकम सॉन्ग गा रही थी. वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, ओवर एक्साइटमेंट. हम लोगों ने कोशिश की, परसुएड किया कि माँ प्लीज स्टॉप कर, अदरवाइज तबीयत खराब हो जाएगी. बट शी डिड नॉट फॉलो अस. दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. फर्स्ट टाइम था जब मैंने नोटिस किया था अपने पूरी लाइफ में कि ये पहला दिन था जब उसने पूजा नहीं की. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. इट वॉज ए mild fever and the doctor told us that it would go. Next morning when it was noticed that she is not feeling well, we called the doctor and doctor examined her and checked. Later on doctor declared that she is already well. She had only a mild fever and it would go. हल्का सा बुखार है, ठीक हो जाएगा. But my grandmother thought differently. दादी माँ कुछ और सोच रही थी. She told us that her end was near. She declared, grandmother told to us that this is the last stage of her life and she would live no more. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. Before her death, grandmother announced that now she had not a sufficient time, so she wanted to pray to God. She did not want to waste time with us in talking. We protested, we opposed. Protested means opposed. हम लोगों ने विरोध किया. But she ignored our protest. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. अपने बेड पर चुपचाप लेटी हुई थी और वहीं पर रुद्राक्ष की माला से बार बार
अपना प्रेयर कर रही थी वो। हम लोगों ने कहा दादी माँ मान जाओ, बट शी डिड नॉट। चुपचाप अपनी उस काम में वो लगी रही। वो चाहती थी कि जो उसका एक दिन मिस हुआ है इट शुड बी डन प्रॉपरली। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. हम कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसके लिप्स का मूवमेंट रुक गया और जो रोजरी ऑफ बीड्स थी, रुद्राक्ष की माला थी, वो भी उसके हाथ से नीचे गिर गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. एक बिल्कुल अंतिम जो शांति होती है, सुकून होता है, वो उसके चेहरे पर छा गया। So now she was dead. We lifted her off. We lifted her off the bed. हमने उससे, जैसे कस्टमरी होता है, एक जब हमने नोटिस किया कि अब उसका चेहरा था बिल्कुल पीसफुल, कलर मीन्स येलोइश, पीला पड़ चुका था उसका चेहरा बिल्कुल। हम समझ गए कि वो मर चुकी है। हमने उसको बेड से नीचे उतार कर ज़मीन पर लिटा दिया, एज इज कस्टमरी, ये रिवाज में शामिल होता है। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद रेड श्राउड। श्राउड मीन्स कफन, चादर, उससे उसको ढक दिया रेड चादर से। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, MOURNING, मॉर्निंग मीन्स टू वीप, रोना, we left her alone to make arrangements for her funeral. funeral means अंतिम संस्कार। कुछ देर तक हम लोग रोते रहे, उसके बाद उसे अकेला छोड़ दिया दादी माँ को और हम लोग उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लग गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। इवनिंग में हम उसके रूम में गए, उसका रूम मतलब जहाँ हमने, वेयर द ग्रैंड मदर वाज लेड डाउन ऑन द फ्लोर, शी वाज केप्ट एज इट इज़ द कस्टमरी ऑफ हिंदू कल्चर कि डेड बॉडी को कभी बिस्तर पर नहीं रखते, उसको नीचे ज़मीन पर रखा जाता है। तो हम अपना सारा अरेंजमेंट करने के बाद में हम उसके लिए एक स्ट्रेचर, क्रूड स्ट्रेचर, बांस का बना हुआ होता है, क्रूड मीन्स अगली, स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। उसके अंतिम संस्कार के लिए हमने एक अजीब सा बना रखता बांस की टट्टी बना रखी थी, उसको लेकर आए थे। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड बरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। सूर्यास्त हो रहा था और सूर्य ने भी उसके कमरे में, बरामदे में ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरी रोशनी को बिखेर दिया था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कल्टयार्ड। हम आंगन में ही रुक गए, आधे रास्ते में ही। वी ऑल ओवर द वरांडा एंड इन अ रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. Why we stopped there? हम वहाँ क्यों रुके? क्योंकि जिस रूम में जहाँ उसे नीचे लिटाया गया था, उसकी बॉडी को कवर किया गया था लाल रंग के कफन से, लाल रंग की चादर से उसको ढका गया था। वहाँ पूरे बरामदे में, पूरे कमरे में, फर्श पर हज़ारों स्पैरोज बैठी हुई थी। हज़ारों स्पैरोज जिनको वो रोज़ खिलाती थी, वो उस दिन वहाँ बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग एंड व्हाट इज सरप्राइज,
All of them were in silence mode. They were not chirping. No hue and cry was there. All of them were sitting silently. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some bread for them. As usual, we thought that they have arrived here for eating something. So, my mother brought some bread from the kitchen and offered the birds. She broke it into little crumbs. Crumbs means small pieces. The way my grandmother used to, and throw it to them. जैसे दादी माँ छोटे छोटे पीसेस करती थी, ऐसे ही मेरी माँ ने उनके छोटे छोटे पीस किए ब्रेड्स के, उनको उनके सामने रख दिया. The sparrows took no notice of the bread, but it was another astonishment for all of us. Not a single sparrow took a piece of bread. They did not heed at that. They avoid. उन्हें लगा ही नहीं कि यहाँ पर कुछ खाने के लिए भी, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया. When we carried my grandmother's corpse off, corpse means dead body, और जब हम अपनी दादी माँ की डेड बॉडी को उठाकर चले, they flew away quietly. सभी स्पैरोज, हजारों स्पैरोज थी, बिना चिरपिंग के, बिना बोले चुपचाप सब वहाँ से उड़कर चली गई. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. और अगली सुबह उन स्वीपर्स ने वो ब्रेड क्रम्स थे, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े थे, उनको डस्टबिन में डाल दिया. सो इट शोज दैट इन रियल सेंस कि फीलिंग ऑफ सेपरेशन केवल इंसानों में नहीं होती, बट फीलिंग ऑफ सेपरेशन एनिमल्स में भी होती है, बर्ड्स में भी होती है. वो छोटी छोटी चिड़िया भी इस बात को जानती थीं, वो महसूस करती थी इस चीज़ के लिए कि यस, नाउ ग्रैंड मदर इज़ नो मोर. सो दे अराइव्ड देयर टू पे देयर होमेज. होमेज मीन श्रद्धांजलि. टू पे देयर ट्रिब्यूट. ट्रिब्यूट मीन्स होमेज, श्रद्धांजलि. ट्रिब्यूट, होमेज, अपना अपना पे करने का तरीका अलग अलग होता है. तो इन द सेम वे वो वहाँ पहुँची और उन्होंने बिल्कुल साइलेंट मोड में रहकर कंप्लीटेड द टास्क. सो दिस इज द चैप्टर 1. Dear student, in this chapter you have to note down the most important thing, that is very common thing. Summary of the lesson will play the important role, because in exam online test में I will provide you 25 or 30 MCQs, multi choice question, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट. इस टेक्स्ट के बेस पर आपको लगभग 30 MCQs आई विल प्रोवाइड, एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर. क्लियर? इसलिए जितना डीपली इसको आप पढ़ेंगे उतना आप इंजॉय करेंगे और उतना आपको एक अचीवमेंट करने का मौका होगा. फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर. The three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. Dear student, mean of the question: the three phases of the author's relationship with his grandmother. दादी माँ और राइटर के जो रिलेशनशिप थे उसके 3 फेज आपको शो करने हैं. कब के करने हैं? बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी एब्रॉड. जब वो बाहर पढ़ने जाने वाला था उससे पहले के जो 3 फेज थे वो क्या थे? तो 3 फेज में फर्स्ट फेज आपका कौन सा होगा बेटा? व्हेन ही वाज विद हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज. जब विलेज में था, दादी माँ उसको उठाती थी, उसको स्टाइल चपाती देती थी, उसको स्कूल ले जाती थी.
ओके, लेटर ऑन जब व्हेन दे अराइव इन द सिटी, आप इस आंसर को इस तरह से करेंगे ना, क्योंकि व्हेन ही वाज विद हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज, और सेकंड में मेंशन करेंगे व्हेन ही वाज लिविंग विद हिज ग्रैंड मदर इन द सिटी। तो ये तीन पॉइंट आपके वहाँ पर बन जाएंगे इजीली। इन द सिटी व्हेन दे अराइव्ड। अब सिटी में आने के बाद क्या था, नंबर 1, ग्रैंड मदर वॉज नॉट एबल टू सपोर्ट हिम इन हिज टीचिंग, बिकॉज जो सब्जेक्ट उसे पढ़ाए जाते थे, दादी माँ वॉज नॉट कैपेबल टू टीच हर, उसे पढ़ा पाने में उसको पढ़ाई नहीं पाती थी। सेकेंडली, म्यूजिक शी डिड नॉट लाइक। thirdly, she was not able to see him off to the school because the writer used to go by school bus। तो ये उसके चेंज आ जाएंगे। 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school। तो वही लॉजिक बन गया, स्कूल जब जाता था, सिटी स्कूल जाता था, तो उस समय दादी माँ क्यों डिस्टर्ब हो गई। इंग्लिश और साइंस उसको आते नहीं थे, दैट्स वाई। एक तो ये कॉज था उसके डिस्टर्बेंस का। सेकेंडली, म्यूजिक। थर्डली, कि स्कूल में गॉड के बारे में और स्क्रिप्चर्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं दी जाती। ये 3 पॉइंट्स थे, उन 3 पॉइंट्स के बारे में इन डिटेल्ड यू हैव टू मेंशन देयर। क्लियर? So these are the main questions of the lesson, dear student. Please pay attention them. Next question is 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। 3 तरीके बताने हैं जब दादी माँ ने अपने, जब वो राइटर बड़ा हो गया तो उसका अपना टाइम पास कैसे होता था। नंबर 1, बाय फीडिंग स्पैरोज, स्पैरोज को फीडिंग करती थी। स्पिनिंग व्हील्स पर पूरे दिन लगी रहती थी, और रोजरी बीट्स को बाय प्रेइंग गॉड। ये 3 चीज़ें थी जिसमें अपना टाइम पास करती थी। द ओड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। मरने से पहले जो उसका ये अजीब सा व्यवहार था, वो क्या था दादी माँ का। शी डिड नॉट प्रे बिफोर हर डेथ। पहली बार उसने भगवान की पूजा नहीं की, बल्कि क्या करा, शी अरेंज्ड एन ओल्ड ड्रम, कॉल्ड सम लेडीज फ्रॉम द नेबरहुड एंड वेंट ऑन सिंगिंग। ओके, एंड नेक्स्ट इज द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड। Really, it's a very heart-touching points of the story. How did the sparrows express their homage, express their tribute to the grandmother? दादी माँ के लिए स्पैरोज ने अपनी फीलिंग्स को कैसे शो किया। They arrived there in thousands and sat on there in silent mode. Even they were offered something to eat, but they did not pay attention at the food offered by writer's mother, and later on she flew away without making a chirping। बिना शोर मचाए चुपचाप वहाँ से चली गई थी। So dear student, first of all you have to complete this thing. If you note down the summary of the lesson, definitely all the points will be covered up, and it's my suggestion while writing the summary of the lesson, boldly आप उसको मेंशन करें। पूरा summary को 2 parts में आप डिवाइड कीजिएगा। when she was living in the village, when she was in the city, and when the writer went to abroad for further study, and after his death whatsoever। ओके, तो उसकी जो डेथ वगैरह है वो सब इसमें आपकी कवर अप हो जाएगी। सो आई सपोज इट्स इनफ फॉर टुडे। ओके,
and read the each and every words carefully, because in MCQ definitely I am to work hard more than you, और हम चाहते हैं कि आप हमसे ज़्यादा वर्क उसमें करें, सो दैट ईच वन एंड एवरी वन शुड स्कोर 100 मार्क्स, एंड आई एम श्योर इफ द लेसन इज इन योर फिंगर टिप्स यू विल डू दैट. ओके डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, enjoy the day.